Welcome back. Dear viewers, we are discussing plus 2 biology. Today we'll start with a new chapter, chapter number 15, that is biodiversity and conservation. So first of all, coming to biodiversity. As the name indicates, biodiversity means diversity in biological world. Diversity means different forms, existence of different forms. जब सिंपल शब्द में बोले तो वैरायटी. बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितनी भी वैरायटी है वो वैरायटी किसी भी लेवल के ऊपर हो सकती है, जीन्स पे, जीन पूल पे, स्पीसीज पे, हैबिटेट पे एंड सो ऑन. सो द occurrence of different types of genes, gene pools, species, habitat and ecosystems in a particular place and various parts of earth is known as biodiversity. Biodiversity is inherent in occurrence of various types of environmental conditions in different parts of an area as well as earth and the presence of various forms of life adapted to these different environmental regimes. तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम थोड़ा सा और इस चर्चा करें तो जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं. अब डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं तो वहाँ पर जो लाइफ्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो भी डिफरेंट होंगे और एक पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्टेड होंगे. Even in a small area, the biodiversity is so immense that the totality of biodiversity over the earth is immeasurable. There are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. Biodiversity is not uniform. It varies from place to place. It is related largely to productivity of the ecosystem. अब जो बायोडाइवर्सिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं रहती एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी और जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी उसी प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और इकोलॉजी के टर्म में बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज रिलेटेड लार्जली टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. अब इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है पृथ्वी पर ये क्यों है, इसके आंसर ढूंढने के लिए जो इकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके माइंड में आते हैं. Why are there so many species? Did such great diversity exist throughout Earth's history? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to the biosphere? Would it function any differently if the diversity was much less? How do humans benefit from the diversity of life? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जो आंसर हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे. So in our biosphere, immense diversity exists not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomes. तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट हमने पिछले चैप्टर में देखा था. तो जो बायोस्फीयर में जो डाइवर्सिटी है वो मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम तक हर लेवल में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशल बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: genetic diversity, species diversity and ecological diversity. So first of all, coming to genetic diversity, it is measure of variety in genetic information contained in the organism. तो ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसमें वैरायटी जो है, अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और यू कैन से जीन्स. टाइनी सेगमेंट ऑफ डीएनए कंस्टिट्यूट जीन्स. So a single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic variations shown by medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical that the plant produces. तो अगर इस हम Rauwolfia serpentina की बात करें तो इसमें जो एक्टिव केमिकल होता है रेजरपाइन, इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन या पोटेंसी में जो वैरायटी पाई जाती है. इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो. Genetic diversity within a species is also the basis of speciation.
एक ही स्पीसीज के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पीसीशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। तो जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, उतने ज्यादा आगे चांसेस होंगे नई स्पीसीज की फॉर्मेशन के। लोअर डाइवर्सिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मिटी। It is important for the crop plants where large cultures of genetically similar plants not only give better yield but also uniform yield. अब जो लोअर डाइवर्सिटी है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लोअर डाइवर्सिटी होगी तो दैट विल लीड टू यूनिफॉर्मिटी। अब कई जगह हमें लोअर डाइवर्सिटी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्रॉप प्लांट्स की अगर बात करें तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स होंगे, हाई यील्डिंग प्लांट, जहाँ हाई मतलब हाई क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे तो वो एक अच्छी यील्ड देंगे और यूनिफॉर्म यील्ड देंगे। However, in nature, lesser diversity poses a threat of epidemic attack by an insect or fungal disease. लेकिन नेचर में जो लेसर बायोडाइवर्सिटी है, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि कोई भी अगर इसके ऊपर अटैक हुआ, एपिडेमिक अटैक हुआ, तो उसके साथ ये खत्म हो जाएगी। Next is species diversity. Species diversity is the variety of species and their relative abundance present within a region. अब species में variety, किसी particular place में कितनी प्रकार की species पाई जाती हैं, that is species diversity. Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. Next one is ecological diversity. Ecological diversity is the variety of ecosystem which indicate diversity in the number of niches, trophic levels, food web, nutrient cycling, ecological processes, sustaining energy flow, etc. तो ecological level के ऊपर जो diversity है that is known as ecological diversity. At the ecosystem level, India, for instance, with its deserts, rainforests, mangroves, coral reef, wetlands, estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो जितनी ज्यादा छोटी कंट्री होगी उतनी डाइवर्सिटी कम होगी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो जितनी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उतनी ज्यादा है स्टेबिलिटी होगी। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन टू एक्युमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries if the present rate of species losses continue. स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू। अगर इसी दर के ऊपर जो स्पीसीज है ये लुप्त होती रही तो बहुत ही कम समय में ये जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है ये खत्म हो सकती है। सो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इसकी कंजर्वेशन जो है ये आजकल का ज्वलंत मुद्दा है ये, तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।